Hello everyone, welcome to Object Oriented Programming. Now in third unit, I am going to explain you new topic that is about pointer. Now we are going to start runtime polymorphism. But before you learn about runtime polymorphism, you must have knowledge about pointer. You already learned pointer in last semester, but today I am going to revise it. Now, first of all, what is pointer? Pointer is a variable that hold a memory address where a value lives. It means pointer is a one type of variable, and yes, it has one type like integer, float, right? And it hold the particular address where the particular value store, right? Now a pointer is declared using star asterisk sign before an identifier. पर्टिकुलर वेरिएबल नेम के आगे हमें क्या लगाना है, एस्ट्रिक साइन. एंड एज C++ is statically typed language, the type is required to declare a pointer, right? So if we are going to declare a pointer, then we have to mention its type of pointer. Okay, for example, here I mention syntax of pointer variable. For example, data type, for example, integer data type, and then asterisk sign and variable name. It means asterisk sign and pointer name, right? Example भी दिया है मैंने यहाँ पे integer star ptr. So ptr is a pointer variable of type integer. So this ptr can point to a address. At that particular address, a variable is stored. Variable value is stored, and variable value must have integer data type. Okay, how to use pointer? Now define a pointer variable, जो अभी मैंने सिखाया कैसे define करते हैं. Then assign the address of a variable to a pointer using unary operator ampersand, which return the address of that variable. For example, यहाँ पे ptr लिखा है तो ptr equal to address of particular variable, for example I, right? ptr equal to ampersand I ऐसा लिखेंगे हम. Now suppose if I write ptr equal to ampersand I, तो क्या होगा, pointer, here pointer is store the address of I variable, और pointer और I की दोनों की data type same होगी, right? If I print star ptr, then star ptr क्या print करेगा, it means particular ptr pointer पे जो address store है वो address पे जो value है वो display करेगा, right? So addressing the value stored in the address using unary operator asterisk, which return the value of the variable located at the address specified by its operand. Okay, now next topic is pointer to object. Now a pointer can point to an object created by a class. As we define object of class, and in that same manner we can also define a pointer of type class. Now object pointer are useful in creating object at run time. अब तक हमने compile time पे object create किया है. Now object pointers are useful in creating object at run time, right? And we can also use an object pointer, this pointer, instead of object to access the public member of class. Now here I mention one example. For example, here one class is there item. In that two data members, public data member, integer number and integer name, that is integer item number and integer item name are there. Then void get data and put data, two methods. Now in that method are written outside the class. Get data for accepting item number and name, and put data is used to display item number and name, right? You know about this coding now. Okay, now here what we had do, item I1 and
I2 दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए. नाउ I1 डॉट गेट डेटा एंड I1 डॉट पुट डेटा वो अब तक हम लिखते ही आए हैं, आपको पता है. गेट डेटा मेथड को हम कॉल कर रहे हैं थ्रू I1 ऑब्जेक्ट. बट नाउ पॉइंटर थ्रू अगर हमें मेथड को कॉल करना है तो कैसे करेंगे? लाइक हियर फर्स्ट क्रिएट पॉइंटर ऑफ दिस क्लास आइटम, देन I2 ऑब्जेक्ट जो हमने ऑलरेडी क्रिएट किया है तो हमें लिखना है ptr इक्वल टू एम्परसेंड I2. जैसा कि हम पर्टिकुलर नॉर्मल वेरिएबल में करते हैं वैसा ही करना है. देन ptr फिर डॉट ऑपरेटर की जगह पे हमें एरो लिखना है, ठीक है, दैट इज डैश एंड ग्रेटर देन साइन. सो and after function name. So using these method we can also access function through pointer of type class. ठीक है, सेम हमने I1 डॉट गेट डेटा I2 डॉट गेट डेटा लिखा है, वैसे ही पॉइंटर थ्रू भी हम ये एक्सेस कर सकते हैं, राइट. सो दैट इज पॉइंटर टू क्लास. नाउ एक्सप्लेन दिस पॉइंटर विथ एग्जाम्पल. नाउ C++ use unique keyword called this. This is a pointer. It is a one type of special pointer that represent an object that invoke a member function. Particular member function को invoke करने के लिए this pointer used होता है. So this is a pointer that points the object for which this function was called. इट मीन्स सिंपल वर्ड में आपको याद रखना है, दिस इज अ पॉइंटर दैट रिफर करंट ऑब्जेक्ट. पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ने फंक्शन को कॉल किया है, ठीक है. इफ आई राइट I1 डॉट गेट डेटा देन दिस पॉइंटर रिफर टू द I1 ऑब्जेक्ट, राइट. सो हियर आई मेंशन वन एग्जाम्पल, क्लास पर्सन, इन दैट टू प्राइवेट डेटा मेंबर, पर्सन एज एंड पर्सन नेम. नाउ यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया है, पर्सन डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है. नाउ हियर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में एज एंड जो नेम है हम वहाँ से पास करेंगे जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे. देन एन इज़ कॉपीड टू द नेम डेटा मेंबर एंड ए इज़ कॉपीड टू द एज. नाउ हमें फाइंड करना है कि दो पर्सन के ऑब्जेक्ट लिए हैं हमने, उसमें से किसकी एज ज़्यादा है, ठीक है. सो हु इज़ द एल्डर पर्सन. नाउ हियर आई मेंशन वन फंक्शन नेम इज़ ग्रेटर. नाउ इन दैट हमने वन पर्सन पी पर्सन का हमने एक ऑब्जेक्ट पास किया है, एड्रेस ऑफ पी एंड मतलब रेफरेंस पास किया है, और उसकी रिटर्न टाइप भी है पर्सन. और हमने रिटर्न टाइप यहाँ पे जो है वो भी हम रेफरेंस वेरिएबल रिटर्न कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा है एड्रेस लिखा है, ठीक है. नाउ एम्परसेंड लिखा है क्योंकि हम रेफरेंस रिटर्न कर रहे हैं. नाउ अब ये फंक्शन पर हम आते हैं बाद में, पहले हम फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे वो देख लेते हैं. लाइक यहाँ पे पर्सन P1 ऑब्जेक्ट में पास करते हैं 30 अल्बर्ट, मतलब अल्बर्ट की एज है 30. देन ऑब्जेक्ट P2 डिक्लेयर करते हैं, हेबर की एज है 25 एंड P3 ऑब्जेक्ट में अहमद की एज है 40 एंड P4 जो है अभी ब्लैंक है, ठीक है, उसमें कुछ वैल्यू नहीं है. नाउ हमें फाइंड करना है P1 डॉट ग्रेटर ब्रैकेट में P2. P1 ऑब्जेक्ट थ्रू हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो P1 की जो वैल्यू है दैट इज़ 30 एंड अल्बर्ट वो ऑटोमेटिकली पास होगी ग्रेटर फंक्शन में, और P2 जो है वो मैन्युअली पास होगी ग्रेटर फंक्शन में, राइट. तो हम देखते हैं मैन्युअली पास हुआ जो P2 है उसकी वैल्यू कहाँ पे आ जाएगी, ये P में, और ऑटोमेटिकली पास हुई वैल्यू आ जाएगी ऑटोमेटिकली ये फंक्शन में, ठीक है, उसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है. सो हम दोनों ऑब्जेक्ट की अब एज चेक करते हैं. लाइक P में जो है, P में कौन सी वैल्यू आएगी, हेबर जिसकी एज है 25. सो यहाँ पे P डॉट एज, यहाँ पे हेबर की एज जो है वो चेक्ड हो रही है. P डॉट एज इज़ ग्रेटर देन एज, मतलब यहाँ पे किसकी एज है, P1 में जो था अल्बर्ट की एज है, ठीक है, तो वो ग्रेटर है नहीं, क्योंकि यहाँ पे हेबर की एज है 25 और अल्बर्ट की है 30.
सो इफ ये ग्रेटर है तो p रिटर्न करता, बट अभी वो ग्रेटर नहीं है, सो इट रिटर्न दिस। ठीक है, नाउ दिस मतलब वो किसको रिफर कर रहा है, किसने फंक्शन को कॉल किया है, अभी p1 ने फंक्शन को कॉल किया है। सो अभी क्या डिस्प्ले होगा, p1 इज ग्रेटर देन, राइट, अल्बर्ट इज ग्रेटर देन हेबर। लेकिन डिस्प्ले नहीं हो रहा है, सिर्फ रिटर्न हो रहा है, रिटर्न दिस पॉइंटर, मतलब कौन सा पॉइंटर रिटर्न हो रहा है, p1। इट मीन्स p1 की जो सारी वैल्यू है कॉपी हो जाएगी किसमें, p4 में। सो p4 डॉट डिस्प्ले करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, अल्बर्ट एंड 30 प्रिंट होगा। ओके, नाउ सेम जस्ट चेक्ड इन p2 डॉट ग्रेटर p3। नाउ p2 की एज क्या है 25 एंड p3 की एज क्या है 40 अहमद। तो p3 जो पास होगा वो p में आ जाएगा और हेबर जो है वो ऑटोमेटिकली पास होगा। सो p3 की एज इज ग्रेटर देन p2 की एज। यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो फंक्शन को कॉल कर रहा है, p2, तो यहाँ पे किसकी वैल्यू जाएगी, दिस, यहाँ पे p4 में रिटर्न हो रहा है, मतलब p2 की वैल्यू p4 में जाएगी और p4 की वैल्यू डिस्प्ले होगी, तो वो डिस्प्ले होगा अहमद 40। ओके, होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंटर क्लियर। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी। Now let me explain pointer to derived class. Now we can use pointer not only to the base object but also to the object of derived class. It means we can also used in inheritance, right? Pointer to object of a base class are type compatible with pointer to object of a derived class. It means easily convert हो जाएगा, it means implicit type conversion से। Therefore a single pointer variable can be made to point to object belonging to the different class. It means single pointer हम create करेंगे, वो दोनों derived class और base class object दोनों object को point कर सकता है, it is type compatible. So for example, if b is base class and d is derived class from b, then a pointer declared as a pointer to b can also be a pointer to d. b is a base class है, d is a derived class है, right? Now if we create a pointer of base class, then it can be point to base class as well as derived class also. Like base class pointer point to the object of the base class, like base class b का हमने pointer बनाया स्टार b ptr और यहाँ पे object बनाया स्टार b, तो बेस क्लास का पॉइंटर इक्वल टू एम्परसन बेस क्लास का ऑब्जेक्ट। वैसे ही बेस क्लास का पॉइंटर डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट को भी पॉइंट कर सकता है, लाइक बेस क्लास का पॉइंटर बनाया स्टार बी पी टी आर, डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया डी, एंड देन बी बेस क्लास पॉइंटर बी पी टी आर इक्वल टू एम्परसन डिराइव क्लास ऑब्जेक्ट। क्लियर? सो इट इज टाइप कंपेटिबल। Now this is perfectly valid with C++ because D is object derived from the base class B. But BPTR, that is pointer of base class, can access only those member which are inherit from B class and not the member that originally belong to the D class. Okay, so base class में जितने मेथड है उसको ही एक्सेस करेगा बेस पॉइंटर, वो डिराइव क्लास के मेथड को कॉल नहीं करेगा, एक्सेस नहीं करेगा। एंड इन केस a member of D derived class has the same name as one of the member of B, लाइक शो मैथड है वो बेस क्लास में भी है एंड डिराइव क्लास में भी है, तो क्या होगा, देन एनी रेफरेंस टू दैट मेंबर बाय बेस पॉइंटर विल ऑलवेज एक्सेस द बेस क्लास मेंबर। बेस पॉइंटर को हम डिराइव क्लास का रेफरेंस देंगे कि बेस क्लास का रेफरेंस देंगे, डिराइव क्लास ऑब्जेक्ट का रेफरेंस देंगे या बेस क्लास
ऑब्जेक्ट का रेफरेंस देंगे, बट इट ऑलवेज एक्सेस द बेस क्लास मेथड। मतलब बेस क्लास में 100 मेथड होगी, उसको ही कॉल करेगा, वो डिराइव क्लास की मेथड को कॉल नहीं करेगा। एंड दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एज मेथड ओवरराइडिंग। एंड if we want to access the member of derived class, it means हमें method override नहीं करनी है, then we have to use another pointer and declare as pointer to derived type. that derived type derived class का pointer declare करना पड़ेगा, ठीक है। if we want to access the member of derived class, then we have to use another pointer declare as pointer to derived class, ठीक है। सो डिराइव क्लास की मेथड को कॉल करना है तो हमें डिराइव क्लास के पॉइंटर कॉल करना पड़ेगा, राइट, यूज़ करना पड़ेगा। ओके, नाउ लेट मी एक्सप्लेन इट बाय एग्जांपल। लाइक हियर वन क्लास, बेस क्लास इज BC, शॉर्ट में लिखा है बेस क्लास, उसमें पब्लिक मेंबर है B, पब्लिक वेरिएबल लिया है, एंड शो मेथड विच डिस्प्ले वैल्यू ऑफ B। नाउ हियर डिराइव क्लास शॉर्ट फॉर्म में है DC, दैट इज डिराइव फ्रॉम बेस क्लास, पब्लिकली डिराइव होता है फ्रॉम BC। नाउ हियर अनदर वेरिएबल D इज टेकन एंड शो मेथड सेम नेम है, यहाँ पे बेस क्लास में भी शो एंड डिराइव क्लास में भी शो नेम है, और यहाँ पे दो वेरिएबल डिक्लेयर हो रहे हैं, बेस क्लास का B वेरिएबल और डिराइव क्लास का D वेरिएबल, ठीक है। नाउ अब हमें ऑब्जेक्ट कौन सा बनाना है। फॉर एग्जाम्पल हमने बेस क्लास BC, बेस क्लास का पॉइंटर बनाया स्टार BPTR, और बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट नेम इज बेस। नाउ बेस PTR BPTR में बेस क्लास का ऑब्जेक्ट का एड्रेस असाइन करेंगे, ठीक है, बेस क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस असाइन करेंगे, और उसमें B की वैल्यू भी असाइन की, लाइक BPTR B इक्वल टू 100। नाउ बेस पॉइंटर थ्रू अगर शो मेथड कॉल करेंगे तो कौन सी मेथड कॉल होगी, बेस क्लास की, क्योंकि यहाँ पे पॉइंटर कौन से क्लास का है, बेस क्लास का है। तो बेस क्लास में जो है, तो बेस क्लास का पॉइंटर उतने ही मेथड को जानता है जो बेस क्लास का है, ठीक है। नाउ इफ हमने डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया DC डिराइव, देन बेस क्लास पॉइंटर में हमने डिराइव क्लास का रेफरेंस दिया एंड बेस क्लास के B वेरिएबल में दिया 200 वैल्यू। नाउ बेस पॉइंटर थ्रू हमने शो मेथड कॉल की है, स्टिल हमने एड्रेस कौन से ऑब्जेक्ट का दिया है, डिराइव क्लास का, स्टिल शो मेथड कौन सी कॉल हो रही है, यहाँ पे सिर्फ बेस क्लास की ही कॉल हो रही है, क्योंकि यहाँ पे हमने बेस क्लास का पॉइंटर यूज़ किया है। नाउ हम डिराइव क्लास का पॉइंटर यूज़ करते हैं, तो DC स्टार DPTR डिराइव क्लास का पॉइंटर बनाया, देन डिराइव क्लास का पॉइंटर इक्वल टू डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट, इट मीन्स डिराइव क्लास के पॉइंटर में हमने एड्रेस कौन सा दिया, डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट का दिया। नाउ D की वैल्यू हमने असाइन की 300। नाउ अगर हमने DPTR थ्रू शो किया तो अब डिराइव क्लास के पॉइंटर थ्रू कौन सी मेथड कॉल होगी, डिराइव क्लास की। सो इट विल प्रिंट B इक्वल टू 200 एंड D इक्वल टू 300, ठीक है। सेम हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लाइक टाइप कन्वर्जन भी कर सकते हैं। बेस PTR को कन्वर्ट किया हमने डिराइव क्लास के पॉइंटर में, फिर डिराइव क्लास के पॉइंटर की D की वैल्यू क्या दी हमने 400, एंड सेम टाइप कन्वर्जन करके हम शो मेथड को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो वो भी सेम आउटपुट देगा, लाइक B इक्वल टू 200 एंड D इक्वल टू 400। ओके, दोनों में से कोई भी एक मेथड आप यूज़ कर सकते हो। क्लियर? होप you understand today these pointer, then pointer to object and method overriding, right? So hope you understand this, and if you have any query regarding this, then you can tell me. Thank you.